अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं फोर्ट जीसस, जो कि मुंबासा की बहुत मशहूर लोकेशन है। तो काफ़ी जो है कदीम ज़माने से ये जगह यहाँ पे है। तो चलें आपको दिखाते हैं आगे की तरफ। The foundation of the fort was just built on the rock, as you can see. ओके The walls appear to be so high, but as we're getting, we are climbing the rock. Hence, the wall appear to be short as we are inside. ओके The history about the Fort Jesus takes us back to 1498 when the first Portuguese man reaching the coast here by the name Vasco da Gama. ओके He was finding a sea route to India when he made us stop at Mombasa. But was not much welcomed by the people of Mombasa, so he was forced to go to the north in Malindi, सो where हिस्ट्री इज फ्रॉम 1498. 1498। ठीक है, 1498 So they ईस्वी। went and he was shown a route to India. ओके Then he went back home. He gave the information about Mombasa. So they Alright. decided to come back here and start constructing this building in 1593. ओके Yeah. So the fort today it's 431 years old. 431 ईयर, 431 साल पुराना जो है वो ये बना हुआ है। टॉम बोलेंगे इसको, ये मकबरा जिसमें के कैदियों को भी रखा जाता था। सो दिस वाज फॉर व्हाट? This fort was for military base for the Portuguese. ओके, Yes. पोर्टुगीज जो है उसकी मिलिट्री बेस Then थी। later दरवाजा it was चेक करें। under the Arabs. Then British used it as a prison. ओके Then became a historical monument. This was the ding dong. ओके Open to check your face, and open small door. If you have a load, then the bigger door. तो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश ने इसको इस्तेमाल किया था एज अ प्रिजन, मतलब जेल के तौर पे ब्रिटिश ने इसको इस्तेमाल किया। उसके बाद बाकी आए वो आगे बताते हैं आपको। 1200 रुपये जो है ना वो लेते हैं यहाँ पे नॉन रेजिडेंट के लिए, और जो यहाँ पे वर्क परमिट वगैरह पे है उसका 450 है, और जो पासपोर्ट पे आ रहा है वो 1200 भरेगा। 1200 का मतलब हो गया कि आपका कितना, $10। This was placed here by the British because it was a prison. ओके So, meet the reception, make a consultation, then the door to be open for it to be released. सो ब्रिटिश मेक दिस Prison. प्रिजन। Yeah, it was a prison for the British from 1895. to ब्रिटिश ने 1988. प्रिजन बनाया था। जब इसको जेल बनाया था तो इन्होंने ये उसका एंट्रेंस बनाई थी ताकि कैदी जो है वो बाहर न जा सकें। Can you read this now for yourself? टू 1950 फोर्ट जीसस बिकम एज अ गवर्नमेंट प्रिजन, मतलब यहाँ का गवर्नमेंट का प्रिजन जो है वो इस टाइम से स्टार्ट हो गया था, जो कि बाद में ख़त्म हो गया। अभी तो टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। तो ये देखो, So, produce the receipt here. You tell me. So we'll start this other end, Okay. and we'll end up in the head side. ऑलराइट। So we have got these stuffs here. Let's find up with them. ओके, ओ This is a बहुत cannon भारी है ball. भाई। अच्छा खासा भारी बोला है। ठीक है, ये जो है ये इस्तेमाल होता था इन तोपों के लिए। ठीक है, So they used to place in gun magazine powder, almost 1 kilogram. so followed by it's the how ball. many kgs? This one Around is around 6-7 kgs now. no, around above 10. It is above 10. Then you cannot carry it. I can. So 7-7, 8-8 किलो के जो है ना गोले मारे जाते थे इससे। ठीक है तो आगे वाले का क्या हाल होता होगा वो तो हम सोच सकते हैं। So these ठीक are है। Portuguese cannon and those are British cannon. All of them. At each end of a cannon there was a hole where they could lit a fire. ओके So the fire getting to the magazine, blow the ball out, hitting M targets. The target were the ships that were made up of wood. So they break them, subjecting them to sink. यहाँ कहीं आग लगाई जाती थी, उसकी वजह से जो है ना वो जल के कारतूस जलने के बाद जो है आगे गोला जिसको जाके मारना है बम करके लगता था। उसके बाद जो होता था वो अल्लाह ही जाने। So they just got display here. The Portuguese and those are British. दिस वन इज फॉर पोर्टुगीज। ठीक है, पोर्टुगीज का जो है वो ये था, और ब्रिटिश का जो है वो सामने रखे हुए हैं। British cannon. ठीक है, तो इसकी दीवारें भी देखें किस तरीके की हैं। This is a watchman's tower.
Unlike nowadays, we do put CCTV time before people were manning the security. ओके, तो यहाँ फौजी जो है वो बैठ के सिक्योरिटी देते थे, मतलब ये है कि And these was जैसे हमारे यहाँ छावनी वगैरह होती है ना, ये छावनी हो गई समझो। तो ये यहाँ पे जो है ना सोल्जर के कमरे बने हुए थे जो कि वक्त के साथ टूट गए, तो अभी भी समझो कि छोटे छोटे जो है ना बॉर्डर्स अवेलेबल हैं देखने के लिए। तो अच्छी खासी हिस्ट्री है इस जगह की, देख के पता लग रहा है कितना कदीम है ये। तो इनको तो इन्होंने रंग कर दिया, वरना तो जंग आलूद होंगी। Mombasa being an island, we have no source of water. ओके, Only the rain for fresh water to drink time and again. We don't have rivers or lakes. So this is a cistern tank, underground reservation water tank Okay. by the Portuguese. It's 56 feet deep ओके, and a diameter of 7 meters. So when full, it could sustain them for almost 6 years without any problem. ओके। Rain water. तो ये इधर जो है ना ये टैंकी बनाई हुई है इन्होंने, क्योंकि ये आइलैंड है मोम्बासा पे जिस पे चारों तरफ पानी है, तो उन्होंने एक टैंक बनाया था, अच्छा खासा बड़ा कुआं जिसके अंदर अच्छा खासा पानी जमा हो जाता था, जो कि हाउ मेनी द वाटर दे कैन यूज फॉर हाउ लॉन्ग, If it's full, almost 6 years without any problem. 6 साल तक जो है But इस्तेमाल due हो to सकता rain, था अगर it's फुल हो refilling जाता था। it. तो बारिश तो खैर अच्छी खासी होती है अभी भी, उस वक्त भी होती होगी, तो 6 साल अच्छा लंबा अरसा है भाई। Now when the Arab took over the fort, they thought the water in the cistern was poison. So they sank their own well behind here. ओह, But before that, this was a church. This is the remain of the church. This was the altar end, and this was a confession room. These guys were Catholics. कैथोलिक्स का चर्च था इसमें, जो कि यहाँ पे समझ लो कि सीटिंग एरिया बनाया हुआ था। तो ये उसका क्या नाम है, कन्फेशन, मतलब जहाँ पे वो खड़े होके बता रहे होते हैं, ये वो है। ये एक फावड़ा है, ओ भाई बड़ा भारी है। अब इसको जो है ना ये करते क्या थे, दिस फॉल्स फॉर व्हाट पर्पस, कश्ती जब भी खड़ी करनी होती थी ना, उसके लिए जो है ना इसको नीचे पानी में डालो, कश्ती फंस जाती है। तो वही है, लोहे से बनाया गया है, अच्छा खासा रफ है और भारी है भाई। So now we are moving to We are moving towards the side of the lake. So this is the Oman well, which I told you. After the Portuguese left, the Oman thought the water was poison for them, so they sank their own well. Omanis sank a well soon after they had captured Fort Jesus in 1698. So ये उनके लिए जो है ना, ओमानियों के लिए समझ लो कि जहर था पानी, तो उन्होंने अपना एक कुआं खोद दिया। You can have a little bit. तो ये कुआं उन्होंने खोदा था अपने लिए पानी जमा करने के लिए, जिसमें कि ओ भाई किधर है ये, ओ है अच्छा खासा गहरा है, अच्छा बंद किया हुआ इन्होंने। The place here, this is one of the toilets we used. तो अच्छा बाथरूम, भाई ये इधर बाथरूम भी है। अब वही हमने सोचा नहीं कि वो करते क्या होंगे किधर, ठीक है। तो ये ओहो हो, And the सो इट वाज ओपन, Yeah, it was just open. मतलब ऐसे ही है, There are more toilets. ठीक है। इधर सामने नजारा है और इधर जो है ना, इधर कम जो वेयर इट इज गोइंग। हाँ तो भाई जिसको भी बाथरूम करना है तो वो इधर करता था, ठीक है, मैंने दिखाया आपको। तो इधर ये खुला, मतलब जिसको देखना है वो देखता रहे, ठीक है। खुलेआम जो होता था वो यही है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। But this is a replica. It's not the original skeleton. The original skeleton was given respect of it being reburied underneath. Oh, so it's artificial. Yeah. So it's said to be a Christian burial. If it's a Muslim burial, the head will be the other side facing Mecca. Oh. तो ये पहले जो है ना एक इधर मिला था स्केलेटन, जो कि क्रिश्चियन ने उसको दफनाया हुआ था।
तो ये बोल रहा है कि अगर वो गाइड जो है वो बता रहा है कि अगर मुसलमानों का होता तो वो किबले की तरफ सर होता उसका, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ दफनाया हुआ है। तो ये एक समझ लो कि एज अ ब्यूरियल हो गया दफन करने का। But when the Arab took over, the captain of the Arab said this end called Oman House. ओके Today we have got small exhibition about the Omanis there. ओ, ये जो है ना ये ओमानी हाउस है, ठीक है। ओमानियों ने अपने लिए एक घर बनाया था जो कि इस तरीके का है। तो ये छोटी छोटी सीढ़ियां, उसके बराबर में ये लकड़ी का जो है ना इन्होंने बनाया हुआ है, क्या बोलेंगे इसको, होल्डिंग के लिए जो होता है, ठीक है। तो ये ओमान हाउस जो उन्होंने बनाया था ये उसका है। ये देखो दरवाजे किस तरीके के हैं। अंदर इन्होंने जो है ना इंडियन ओशन का पूरा बनाया हुआ है। The early city states, ओके they came mainly for spices. ओके Also they brought the francs and dates. Ivory was one of the trade goods. तो ये पहले का जो भी सामान है, सिनेमोन हो गया, पीली पीली मिर्ची, ठीक है। ये ब्रिटिश वगैरह के जो जो आते गए हैं वक्त के साथ, ये उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये सुल्तान सईद वगैरह जो है, सुल्तान सईद महमूद, तो ये सब इधर के रूल कर चुके हैं ये लोग। इधर का सामान भाई, ये जो छुरी काटे वाटे जो चलते थे ना, वो ये खंजर हो गया, ये तलवार हो गई, तो ये बंदूक की अच्छी खासी बड़ी गोलियां भाई, और ये बंदूक हो गई। बंदूक छोटी सी है, गोले बड़े, कारतूस बड़े हैं इसके। तो ये इनका कदीमी पुराना, इस पे लिखा हुआ भी है जो कि अभी नजर नहीं आ रहा है। तो ये इधर की करेंसी भी है, ये टिकट वगैरह हो गई, और ये कॉइन वगैरह जो उस वक्त इस्तेमाल होते थे। ये तब के 1310 हिजरी का है ये तकरीबन। हाँ नीचे ये लिखा हुआ है 1381, 1381, तो बहुत पुराना है, काफी पुरानी जगह है। तो अभी अंदर जाते हैं। Dress code for the Arab women and some ornaments, anklets, bangles, necklace and earrings. तो ये जो ज्वेलरी पहनती थी औरतें, ये सारी उनकी ज्वेलरी हो गई, जिसमें इयर रिंग्स हैं, बाकी वो माथे पे जो पहनते थे वो हो गया, ताज वगैरह, और ये उनके मॉडल्स हैं जो कि उस वक्त के कपड़े भी इन्होंने पहनाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ मर्दों के भी जो है, मर्द जो पहनते थे कपड़े, तो वो भी है। उसके अलावा वो बीच में खंजर डाल के रखते थे, ये हो गया। उसके अलावा जो है ये कुछ जो है इनका खाने वगैरह के बर्तन हो गए, तो ये खाने के बर्तन, ये शायद रोटी रखने का कुछ, तो ये इनका समझ लो किचन का सामान है। तो अब ये फाइनल कमरे की तरफ, ये जो इसका आखिरी कमरा, बाहर से छोटा लग रहा था, अच्छा खासा बड़ा है अंदर से ये। Some of the economic display of Oman, some of the touristic attraction behind you, and these are some of the state history functions of the Oman. ये हिस्ट्री फंक्शंस हो गए ये वाले। उसके अलावा ये जो है इनका मतलब वो पूरा एक मैप दिया हुआ है तस्वीरें वगैरह के साथ, और ये कुछ जानवरों की तस्वीरें हो गई, और ये सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क जो उसने बनाई थी, ये वो है। ये रॉयल ओपेरा हाउस है जो कि नेपाल में, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आया इसमें। तो ये कमरा है फाइनल। अभी उस वक्त तो पंखे भी मुश्किल से होते होंगे, अभी तो इन्होंने एसी लगाया। आओ मछली दिखाता हूँ, वेल। ये देखो कितना बड़ा ढांचा है। इतनी बड़ी मछली भाई बंदे को तो खा जाएगी ये। बसीनी आइलैंड में कह रहे हैं कि अगर आपको जाना है तो वहाँ में भी वेल दिख सकती है, वैसे तो डॉल्फिन वगैरह वहाँ ज्यादा दिखती हैं। तो ये बोल रहा है कि बच्चा है, वेल का बच्चा है ये। तो बड़ी मम्मा कैसी होगी इधर, और उसका पापा कैसा होगा, अंदाजा लगाओ। पोर्टुगीज वॉल पेंटिंग जो है वो दिखाते हैं आपको।
ये इन्होंने जो है दीवार पे बनाई हुई है। Boats, means of transport. Church is showing these people are Christian. Fish, type of food they ate. A horn, communication gadget. A heart crossed with two arrows, sign of heartbreak, always to mean that they miss back home. A chameleon, paint. Okay. They were much found here, considered magic for the camouflage in color. As well, this room was one of the ladies' cell during the British. तो ये इन्होंने बनाया हुआ है पूरा, जिसमें कि कुछ जंग चल रही है। ये इधर जो है ये बादशाह खड़ा हुआ है, और ये कश्ती के कुछ डिज़ाइन इनके ये खैमे टाइप के बने हुए हैं, कश्तियाँ चल रही हैं। तो ये पूरा एक इन्होंने माहौल जो है वो तैयार करके दिया हुआ है। तो जो पे वॉल पे बना हुआ है ये। तो ये दीवार पे पेंटिंग के बाद जो है ये कुछ इस तरीके का माहौल है। ये दरवाज़ा है जो कि आई थिंक समंदर की तरफ खुलता है, जो अब बंद कर दिया गया है। तो ये दीवार पे बच्चों ने ही लगता है उसके बाद जो है वो अपनी नक्शेकारियाँ की हुई हैं। और ये देखो ये सीढ़ियाँ किस तरीके की बनी हुई हैं पत्थरों पे। ये ओमानी दरवाज़ा है जो कि कदीम है। सल्तनत ऑफ ज़ांज़ीबार ने गिफ्ट किया था इनको। ये इस पे पूरी कोरियोग्राफी जो क्या बोलते हैं उसको, डिजाइनिंग हुई हुई है। तो ये देख रहे हैं ये हर दरवाजे के ऊपर ये कुछ चीजें इन्होंने जो है ना बनाई हुई है कांटे टाइप की। ये भी गिरने लग गया है, ये पता नहीं खुलने का दरवाजे का। So this was the kitchen. Today the gift shop as well as display zone for different items. Ile jamaa utengeza vipuli nini, nikamwambia hizi sasa ndio kuja. और ये तो इन्होंने अभी के लोगों ने जो है ना ये कुछ गिफ्ट शॉप बनाई हुई है, जिसके अंदर इन्होंने ये छोटे छोटे कोकोनट शेल जो है ना इसको गिटार बनाया हुआ है। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें जो है वो बनाई हुई है, कश्ती बनाई हुई है। उसके अलावा पूरा नारियल भी एक सूखा हुआ जो है ना, ये सूखा नारियल लगा हुआ है ताकि अगर प्यास लग जाए तो इसी को काट पीट के पानी पी लो। तो ये किचन था, किचन में यहाँ पे जो है वो आग लगाई जाती थी। और ये चिमनी है, ये पूरा ये चिमनी बनाया हुआ इन्होंने, सही है। तो ये चिमनी में से जो है वो धुआं बाहर। तो ये इसके बाद जो है आगे का दिखाते हैं कि पूरा समंदर है, और उसके बाद जो है यहाँ पे फौजी जो है, फौजी का घर है। ये तोप लगी हुई है। तोप के बाद ये खूबसूरत सा सामने समंदर। यहाँ फौजी बैठ के एंजॉय भी करते होंगे और अपना पहरा भी देते होंगे। ये पीछे की तरफ जो है ये छावनी बनी हुई है, वॉच टावर। यहाँ बैठ के बंदा जो है ना वो पहरा देता था। ये बहुत छोटी सी जगह है, दिखाऊं? ये देखो, तो ये इसके बाहर का मंजर है। ये फौजी जो भी बैठता होगा वो यहाँ से वॉच करता होगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो सोचा कि कुछ जो है वो शरबत या पानी पी लिया जाए। ये ठंडा ठंडा ये पीते हैं, फिर आगे का सफर शुरू करते हैं इसमें। तो ये भी कुछ म्यूजियम का हिस्सा है जो कि इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये ट्रेडिशनल जो है यहाँ का वो फुराहा या ईद, ठीक है, ईद वगैरह पे लेडीज पहनती हैं। तो ये उनका है वो जुब्बा टाइप का, मतलब बहुत जो सिंपल सा होता है ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहना जाता है औरतों का। तो ये सारे उसके डिज़ाइन है। इसके अलावा ये मर्दों का, तो ये बल्कि एक औरत ने पहना हुआ भी है, ये देखो, ये रही। इधर आ, हाँ इधर प्लीज।
तो ये इस तरीके का है। तो ये मर्दों का हो गया। ये बीच में इसने वो स्कार्फ की तरह जो है ना रखा हुआ। ये भी है सोहिली, इसको बोलते हैं कपड़ा। ये सोहिली यहाँ के केनिया के जो है जुबान भी सोहिली है और लोग भी सोहिली कपड़े बोलते हैं। तो ये उस तरीके के डिजाइन है। तो ये भी है, ये देखें इस तरीके का पहनते हैं। ये सिलसिला के इस तरह का हो जाता है। तो ये अभी आपको जो दिखाने लगे हैं वो एक तस्वीर दिखाई थी शुरू में, एक पूरा हेड जीसस की जो इन्होंने तस्वीर बनाई हुई थी। तो ये जगह जो है ये हेड है, ठीक है, मतलब सर का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो है कैप्टन वगैरह के हाउसेस थे, कैप्टन के घर थे। तो ये पूरे ये कैप्टन के घर हैं। ये कैप्टन हाउस जो है ये अंदर से, उस वक्त ये छोटे छोटे समझ लो घरों में रहते थे। तो ये कैप्टन हाउस है। इससे ये बाहर कुछ ना कुछ देखते थे। ये देखो बाहर का एरिया देखने के लिए दरवाजा खोला, खिड़की, तो ये देख लिया फौजी बैठे भी हैं अपनी जगह पे या नहीं। तो ये इनका कुछ सामान। इसके अलावा ये अरब का लिखा हुआ है सारा अरबी में। तो इधर जो है काफी अंधेरा है। ये छोटा सा उसका घर, एसी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। उस वक्त तो उनको नसीब नहीं होता था, पर अभी ये है कि कम से कम हम लोग को तो एसी मिला हुआ है। तो ये है, इधर बंदा बैठे आराम से, ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा कमरा। ये देखो ऐसे बैठते थे ये लोग। ये देखो मजलिस। तो अभी जो है आपका भाई खुफिया रास्ते के अंदर जा रहा है, जो इन्होंने के खोद खाद के उस वक्त बनाया हुआ होगा, जिसमें से सिर्फ कैप्टन के घरों में से देखा जा सकता। तो ये पूरा खुफिया रास्ता बना हुआ है, ये देख रहे हो। तो ये एक मैन मेड केज बना हुआ है, जो के समझ लो कि पिंजरा जो होता है ना, उस तरीके का। इधर ये देख रहे हो। तो यहाँ बंदे को रखा जाता था, कैदियों को, तो जो भी उसके साथ होता था। अभी लास्ट टाइम हमने एक ड्रामा देखा था ना, सीरियल, वो अरतुरुल गाजी, उसमें भी कुछ इस तरीके का दिखाया हुआ था। जंजीर से कैदी बंधा हुआ है। तो ये पूरा माहौल चेक करो ऊपर। तो ये तो रियल है, वो तो चलो डॉक्यूमेंट्री जो भी था, पर ये जो है ये रियल है। चलने की जगह भी देखो, अल्लाह माफ करे। तो ये था फोर्ट जीसस, जो कि काफ़ी पुराना कदीम है, जिसमें के कैप्टन भी रहते थे, कैदी भी रहते थे, फौजी भी रहते थे। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।